So guys, now let's discuss about the complication of this disease. Complication. So इसके दो complication होंगे, fetal and maternal. Maternal complications and fetal complications. Maternal complication में जो complication mother में होगा that is pruritus, that is severe itching. This will happen in mother, pruritus. Okay. This female will have severe itch. And अगर हम बेबी में बात करें, so this fetus will be having or this baby will be at high risk. क्या क्या रिस्क होंगे? A. Here there is a sudden fetal death. Fetal death के chances sudden हो सकते हैं, ठीक है? और ये why there is a sudden fetal death in this case due to fetal arrhythmia. Due to fetal arrhythmia. And second cause of sudden death is what? That is vasospasm of placental vessel. Vasospasm of placental vessel. अगर placental vessels का vasospasm हो गया तो fetus को जो blood supply थी वो कम हो जाएगी, ठीक है? And that can lead to fetal distress or even fetal death. Got it? After that, the second complication here is what? There is increased risk of preterm labor. Why there is an increased risk for preterm labor? Because ये जो increase bile acids हैं, these increased bile acids, these bile acids in the amniotic fluid generally do what? They will do uterine irritation. That will lead to preterm labor. Increase bile acids in amniotic fluid cause what? That is uterine irritation. जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? There will be preterm labor. Okay. After that, the third risk here is what? Third risk will be there is risk of meconium aspiration syndrome. There is high risk of meconium aspiration syndrome. Okay. Meconium aspiration में mainly C. ये जो increase bile acids है ना, ये क्या करेंगे? Increase bile acids. This bile acids will go to bowel and there it will cause irritation. Irritation जब होगी तो उससे क्या होगा? Motility बढ़ जाएगी and this fetus will pass meconium inside the womb. और जब meconium अंदर ही uterine cavity के अंदर ही pass हो गया तो this can be aspirated by the fetus and it can cause what? Meconium aspiration syndrome. So this bile acids go to bowel and there it will cause irritation and finally what will happen? There will be increase of motility and उसके बाद क्या होगा?
meconium will pass एंड बेबी क्या करेगा, इस मिकोनियम को एस्पिरेट करेगा, जिसकी वजह से देयर इज अ चांस ऑफ मिकोनियम एस्पिरेशन. ओके, नाउ हाउ यू गोना मैनेज दिस? So for managing this condition, you can give ursodeoxycholic acid, deoxycholic acid. ठीक है, ये आपने जिसका दूसरा नाम, इसका हम क्या बोलते हैं, यूडिलिव भी बोलते हैं, यूडिलिव ब्रांड नेम है इसका. ठीक है, एंड आपने कितना देना है, 300 mg यू हैव टू गिव दिस. एंड इवन अगर 300 mg से नहीं फर्क पड़ता तो आपने इसका डोज इंक्रीज कर देना है और इसको 3 times a day देना है इस फीमेल को. ठीक है, ये क्या करेगा, ursodeoxycholic acids, this will help in excretion of bile acid. This will help in excretion of bile acid. ओके, और बाद में पहले तो आप ये ड्रग दे दोगे, दूसरा आप क्या करोगे, यू विल गो फॉर termination of pregnancy. और जनरली ये आपने कब करनी है, एट 37 वीक्स. 37 वीक्स पे ही करनी है आपने. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट. So management of preeclampsia. Okay. So for the management of preeclampsia हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट के लिए 2 approaches हैं. First is symptomatic management and other is specific management. First is symptomatic management and second one is what, specific management. अब सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट आप कैसे करोगे प्री एक्लैम्सिया की, बाय गिविंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और यू कैन ऑल्सो गिव एंटी सीजर्स ड्रग. सो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए हम क्या देंगे, फर्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. ठीक है, ये जो एंटी हाइपरटेंसिव है ये क्या करेंगे, दे विल डिक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक. ठीक है, दूसरा हम देंगे एंटी सीजर ड्रग्स. ठीक है, एंटी सीजर्स ड्रग हम देंगे टू प्रिवेंट द रीअकरेंस और द episode of seizures. To prevent first episode or recurrence of seizures. ठीक है, ये तो थी हमारी सिम्टोमेटिक अप्रोच. स्पेसिफिक मैनेजमेंट अब आप कैसे करोगे, फॉर द स्पेसिफिक मैनेजमेंट यू विल गो फॉर व्हाट, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो इसके लिए आप करोगे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, अब टर्मिनेशन हमने क्यों की, फर्स्ट to stop the disease progression and second to reverse the if damage. So first to decrease progress
of disease, and secondly to reverse the damage. Okay, so in this way you can manage the preeclampsia. So once again, preeclampsia को मैनेज करने के दो वेज हैं, वन इज सिम्टोमेटिक एंड अदर इज स्पेसिफिक. सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में हम एंटी हाइपरटेंसिव देंगे ताकि हम स्ट्रोक का रिस्क कम कर दें. सेकेंडली हम देंगे एंटी सीजर्स ड्रग टू प्रिवेंट द फर्स्ट एपिसोड एज वेल एज द रीअकरेंस ऑफ द सीजर्स. और अगर हम स्पेसिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली व्हाट यू विल डू, यू विल गो फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. और टर्मिनेशन हम क्यों करेंगे, ताकि हम जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है उसको रोक सकें और उसके इफेक्ट को रिवर्स कर सकें. ठीक है. नाउ अब कौन कौन से हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जो यूज़ कर सकते हो. सो लेट्स डिस्कस अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव्स. सो एंटी hypertensive drugs. So जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं इनका डिफरेंट इंडिकेशन है. फर्स्ट, अगर बीपी इज मोर देन 160/110 mmHg ऑफ मर्क्यूरी, सो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ केस ऑफ एक्यूट हाइपरटेंशन. ठीक है. तो इस केस में आप क्या करोगे, फर्स्ट यू विल वेट फॉर 15 मिनट्स. आपने बीपी की रीडिंग ली, फिर आप 15 मिनट्स के लिए वेट करोगे. देन अगेन यू विल रिपीट द टेस्ट, वेट फॉर 15 मिनट्स एंड आफ्टर दैट अगेन टेक द बीपी, टेक बीपी. आपने फिर से बीपी लिया, ठीक है, और बीपी फिर से अगर ज़्यादा आया, इफ द बीपी इज स्टिल मोर, देन इन दिस केस वी विल गो फॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. देन अब हम क्या देंगे इसको, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. ठीक है. अब कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव दोगे. सो फर्स्ट, पहली बात तो हम इसको आईवी देंगे क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम आईवी देंगे. और ड्रग ऑफ चॉइस जो हमारा इस केस में होगा दैट विल बी लेबिटोलॉल. लेबिटोलॉल देंगे हम इसको. ठीक है. व्हाट डोज यू हैव टू गिव लेबिटोलॉल की. सो 20 mg IV you have to give to the patient and after that you have to wait for 10 minutes. अगर बीपी नहीं गिरा, फिर से अगर बीपी फिर से हाई है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अगेन गिव 40 mg IV to the patient. So after giving 20 mg, wait for 10 minutes to decrease. अगर नहीं हुआ तो गिव 40 mg IV. ठीक है. अगेन उसके बाद वेट फॉर 10 minutes. अगर फिर से नहीं कम हुआ, इफ नॉट डिक्रीज, देन what you have to give, then give 80 mg IV. अब अगर 80 mg से भी फर्क नहीं पड़ा तो आपने फिर 80 mg रिपीट कर देना है. ठीक है. अब 80 mg दिया आपने, फिर आपने 10 मिनट के लिए वेट किया, और अगर if still not decrease then again repeat 80 mg IV. ओके. मैक्सिमम डोज जो आप दे सकते हो इस ड्रग का, मैक्सिमम डोज ऑफ लेबिटोलॉल दैट यू कैन गिव इज व्हाट, दैट इज 300 mg. So 300 mg is a maximum dose that you can
गिव. ओके, सो अगेन सी, पेशेंट है जिसका बीपी इज मोर देन 160/110. इसको हम एक्यूट हाइपरटेंशन में क्लासीफाई करेंगे. फर्स्ट आप क्या करोगे, उसको 10 मिनट्स बिठाओगे, देन आपने फिर बीपी लोगे. अगर उसका बीपी बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, यू विल गिव एंटी हाइपरटेंसिव. कौन सा, लेबिटोलॉल दोगे. कैसे देना है, आईवी देना है. फर्स्ट यू विल स्टार्टिंग डोज विल बी 20 mg. आफ्टर दैट अगेन 10 मिनट वेट किया, बीपी नहीं कम हुआ तो गिव 40 mg. फिर आपने 10 मिनट वेट किया, फिर अगर बीपी कम नहीं हुआ देन गिव 80 mg. अगर उसके बाद भी कम नहीं हुआ फिर गिव 80 mg. तो ऐसे करके आप मैक्सिमम लेबिटोलॉल कितना दे सकते हो, 300 mg तक आप यू कैन गिव. ठीक है. अब अगर लेबिटोलॉल से उसको फर्क पड़ ही नहीं रहा तो सेकेंड लाइन ऑफ जो ड्रग आप चूज करोगे दैट विल बी हाइड्रेलाजीन. सो सेकेंड लाइन यू विल ऑप्ट, और वो क्या है, दैट इज हाइड्रेलाजीन. ये भी हमने आईवी ही देना है, आईवी हाइड्रेलाजीन. ठीक है. इसका डोज कितना होगा, आप दोगे 5 mg आईवी एंड देन अगर इससे फर्क नहीं पड़ा तो फिर आपने 20 मिनट्स के बाद इसको रिपीट करना है. 20 मिनट्स वेट करके अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो अगेन यू हैव टू गिव हाउ मच, 10 mg आईवी. ओके. ऐसे ही मैक्सिमम डोज आप कितना दे सकते हो, 20 to 30 mg. हाइड्रेलाजीन का जो मैक्सिमम डोज है दैट यू कैन गिव इज 20 to 30 mg. ओके. नाउ the other drugs that you can use here, other drugs क्या क्या यूज कर सकते हो, you can use nifedipine. नाइफिडिपिन क्या है, नाइफिडिपिन इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. नाइफिडिपिन इज अ CCB दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. और ये हमने कितनी देनी है, यू हैव टू गिव 10 mg ओरल. ठीक है. नाइफिडिपिन क्या करेगा, नाइफिडिपिन आपने ओरली देना है. दिस इज अ इमीडिएटली यू कैन यूज, सबलिंगुअल नहीं देनी, ओरल देनी है. ठीक है. उसके बाद आफ्टर नाइफिडिपिन दैट द ड्रग दैट यू कैन गिव इज आईवी, रिपीट, दैट इज आईवी नाइट्रोग्लिसरीन. ठीक है. एंड आफ्टर दिस नाइट्रोग्लिसरीन the last drug that you can give here is what, that is sodium nitroprusside. नाइट्रोप्रुसाइड दे सकते हो आप, बट ये ड्रग को हम रेगुलरली नहीं दे सकते हैं. ठीक है. रूटीनली यू कांट गिव बिकॉज इट कॉज व्हाट, साइनाइड टॉक्सिसिटी. सो डोंट use routinely. Why? Because it can cause cyanide toxicity. Cyanide toxicity cause कर सकता है. ओके. सो अगेन आपने इस पेशेंट को लेबिटोलॉल दिया, लेबिटोलॉल का डोज भी बढ़ा दिया, 80 तक पहुंच गए, नहीं फर्क पड़ा. मैक्सिमम डोज कितना आप दे सकते हो, दैट इज 300 mg तक. ठीक है. सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग जो है आप यहाँ पे दे सकते हो दैट इज हाइड्रेलाजीन. हाइड्रेलाजीन फर्स्ट आपने 5 mg दी, 20 मिनट्स वेट किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो गिव 10 mg. ठीक है. आफ्टर हाइड्रेलाजीन दैट द ड्रग दैट यू कैन गिव इज नाइफिडिपिन. ये हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. स्टार्ट कितना करना है, 10 mg ओरल डोज देना है इसका.
आफ्टर दैट IV नाइट्रोग्लिसरीन आप यूज़ कर सकते हो, और लास्ट पे यू कैन गिव दिस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, बट यू कांट गिव दिस रूटीनली बिकॉज इट कॉज साइनाइड टॉक्सिसिटी। ठीक है, सो ये हो गया एक्यूट हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट। नाउ सेकेंड सिनेरियो इज व्हाट, लेट्स डिस्कस इट हियर। सेकेंड सिनेरियो इज अगर इस फीमेल का BP is more than 150 by 100 mmHg of mercury, ठीक है, and this is persistently high BP, persistently high है उसका BP, तो in this case again we have to give antihypertensive drugs you have to give. Now with which drugs you have to start? So drug of choice here is also labetalol, पर यहाँ पे आपने लेबिटोलॉल IV नहीं ओरल देनी है, you have to give oral लेबिटोलॉल। बेसिकली ये जो लेबिटोलॉल है इट इज अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, अल्फा बीटा ब्लॉकर है ये, ठीक है, और आपने इस ड्रग को ट्वाइस अ डे देना है, 2 टाइम्स देना है दिन में, ठीक है, और कितना मैक्सिमम डोज आप ओरली दे सकते हो लेबिटोलॉल का? सो मैक्सिमम ओरल डोज इज 2400 mg, whereas IV का मैक्सिमम डोज कितना है 300 mg, ओरल का कितना है 2400 mg, okay? Now here the second line drug that you can use here is not hydralazine now, that is nifedipine, okay, nifedipine देना है आपने। So nifedipine जो है that is a calcium channel blockers, कितना देना है आपने 30 mg orally start करना है, ठीक है। आफ्टर दैट डोंट गिव दिस सबलिंगुअली, सबलिंगुअली नहीं देना। इसको सबलिंगुअली क्यों नहीं देना? क्योंकि ये क्या कॉज करेगा? सीवियर डिक्रीज इन द BP, दिस विल कॉज सीवियर हाइपोटेंशन, ठीक है। और ये जो पेशेंट होंगे ना, इनमें देयर इज डिक्रीज इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम एज वेल। अगर BP कम है तो ऑब्वियसली जो इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम है वो भी कम होगा इन पेशेंट्स में। वॉल्यूम, ओके। नाइफेडिपिन हमने ओरली देना है 30 mg, इसको सबलिंगुअली नहीं देना क्योंकि दिस कॉज व्हाट, डिक्रीज ऑफ BP और सीवियरली डिक्रीज होगा ये, एंड इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम भी इधर कम हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट द थर्ड लाइन ऑफ ड्रग दैट यू कैन चूज, थर्ड लाइन कौन सा ड्रग आप यूज कर सकते हो? दैट इज मिथाइल डोपा, दैट इज व्हाट, मिथाइल, you will repeat, so third line में what you will use, that is methyl dopa, ठीक है। मिथाइल डोपा पे अगर आपने इसको कब यूज करना है? when there is a mild hypertension, so in mild hypertensive cases you can give this drug, okay। this, the maximum dose of methyl dopa that you can give is what, मैक्सिमम डोज कितना दे सकते हो इसका आप? दैट इज 300 mg पर डे, 300 mg इज द मैक्सिमम डोज ऑफ मिथाइल डोपा। ऐसे ही अगर मैक्सिमम इसकी लेबिटोलॉल की बात करें, वो भी ओरल डोज की, तो 2400 है, वेयर एज अगर हम IV डोज की बात करें
मैक्सिमम तो ये कितनी है, इट इज ऑल्सो 300. ओके, now let's discuss about certain antihypertensive drugs that are contraindicated in pregnancy. So hypertensive drug that are contraindicated in pregnancy. So the first antihypertensive that you should avoid in a pregnant female, that is ACE inhibitor. ACE inhibitor, ठीक है. ये जो ACE inhibitors होते हैं ना, usually they cause fetal anomalies, like they cause renal agenesis. So basically they cause fetal anomalies. तो ये क्या होते हैं, टेरेटोजेनिक होते हैं बेसिकली, यार टेरेटोजेनिक ड्रग्स क्या कॉज करेंगे, दे कैन कॉज रीनल एजेनेसिस. अगर रीनल एजेनेसिस हुई तो क्या होगा, दिस विल लीड्स टू ओलिगोहाइड्रोमनियोस. And secondly, these ACE inhibitors also cause Porter's syndrome. Porter syndrome. Okay, so that's why we usually don't give ACE inhibitor in pregnancy. Now, the second drug that is contraindicated is beta blocker. So don't give beta blocker in pregnancy. Okay, this can only be given if there is any cardiac indication. So given if there is cardiac indication. Okay, else just avoid beta blockers, don't give them. Third drug that you should avoid, that is ARBs. ARB means angiotensinogen receptor blockers. So these are angiotensinogen receptor blockers. Okay, and after ARBs, the other drug that you should avoid is mineralocorticoid. That is mineralocorticoid receptor antagonist. So just avoid these drugs because they can cause any fetal problems. Okay, so what drugs are contraindicated? ACE inhibitors because they are teratogenic and cause renal agenesis. Secondly, Porter's syndrome they can cause. After that, beta blocker you should avoid because they can also cause fetal anomalies, and only condition where you can give beta blocker, that is if there is any cardiac indication. Third drug that you should avoid is ARBs, that is angiotensinogen receptor blockers, and after that mineralocorticoid receptor antagonist. Now let's discuss about the dosage of magnesium sulfate. So if they ask you what is the therapeutic range of magnesium sulfate? Therapeutic range of magnesium sulfate.
So what is the therapeutic range? That is around 4 to 7 milliequivalents. ठीक है. So this is basically, इस रेंज में अगर आप MgSO4 दे रहे हो तो it won't cause any side effect or toxicity. Now अगर इससे ज़्यादा हुई कंसंट्रेशन मैग्नीशियम सल्फेट की तो इट कैन लीड्स टू मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी. एंड इफ दे आस्क यू व्हाट इज द फर्स्ट साइन फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, देन व्हाट शुड बी योर आंसर? सो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट साइन ऑफ मैग्नीशियम toxicity. So first sign is what? There is a loss of patellar reflex. So you will see loss of patellar reflex. अब ये पटेला क्या रिफ्लेक्स कब लॉस्ट होगा? एट व्हाट डोज ऑफ MgSO4? सो एट 7 to 10 मिली इक्वलेंट जब आप मैग्नीशियम सल्फेट दोगे, देन ओनली यू विल सी द मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी और लॉस ऑफ पटेलर रिफ्लेक्स. ओके. नाउ एट दिस रेंज यू विल ऑल्सो सी देर इज डायाफोरेसिस. डायाफोरेसिस क्या होती है? ज़्यादा पसीना आना. ठीक है. After that, patient will be feeling warmness, so feeling of warmth. Third, there will be slurring of speech. Slurring of speech. सो ये सारी चीज़ें होंगी जब मैग्नीशियम की जो डोज होगी दैट इज़ अराउंड द रेंज ऑफ 7 to 10 मिलीक्यूरेंट्स. तो इट कैन कॉज फर्स्ट द लॉस ऑफ पटेलर रिफ्लेक्स, दैट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी. Then you will see diaphoresis. After that you can see there is a feeling of warmth, and last one is slurring of speech can occur. Okay. Now if the dose of magnesium is at 12 milliequivalents, so at this dose it can cause respiratory arrest. It can cause respiratory arrest. Okay. Now at 15 milliequivalents, magnesium can cause what? It can cause cardiac arrhythmias. Cardiac arrhythmia. Now after that, if the dose of magnesium reaches at 25 milliequivalent level, so it can cause what? Cardiac arrest. It will cause cardiac arrest. So 7 to 10 milliequivalents पे जो मैग्नीशियम था, it is causing diaphoresis, feeling of warm and slurring of speech. जब मैग्नीशियम का डोज 12 milliequivalents हुआ तो it was causing respiratory arrest, and 15 पे it was causing cardiac arrhythmias, and 25 पे it is causing cardiac arrest. Okay, so ये आपने याद रखना. Now when there will be magnesium toxicity, so what antidote you can give? So antidote for magnesium sulfate toxicity is what? That is, you can give calcium gluconate. कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हो आप. जनरली आपने IV देना है. एंड व्हाट इज द डोज? नाउ इफ दे आस्क यू व्हाट इज द डोज ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, तो आपने कितना देना है? 10 ml ऑफ
10% calcium gluconate you have to give. After calcium gluconate, the other thing that you can give, that is what? That is calcium chloride. Calcium chloride भी आप दे सकते हो. ओके, सो एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट. ये ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट. अदर देन कैल्शियम ग्लूकोनेट आप कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. If they ask you what is the end point of giving MgSO4, end point of giving MgSO4 is what? That is 24 hours after the delivery or 24 hours after last seizures. 24 hours after delivery or 24 hours after last seizure. Okay. Now, what are the different uses of magnesium sulfate? So, let's discuss about the magnesium sulfate uses. So, you know, we give magnesium sulfate for the prevention of seizures. So, first use क्या है? For prevention of seizures. ठीक है. Means मैग्नीशियम सल्फेट को आप यूज कर सकते हो किस कंडीशन में? इन केस ऑफ इम्पेंडिंग इक्लैम्सिया. इम्पेंडिंग इक्लैम्सिया में. ओके. आफ्टर दैट द सेकेंड यूज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ सीजर्स. Prevention of recurrence of seizures. Seizures की recurrence नहीं होने देगा मैग्नीशियम सल्फेट. ठीक है. So you can give MgSO4 where? In eclampsia. Eclampsia में आप दे सकते हो MgSO4. ठीक है. After that it is used as weak tocolytic agent. Magnesium sulfate is a weak tocolytic agent. Okay? Tocolytic क्या होते हैं? जो कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को कम करते हैं. ठीक है. So basically what they do? Decrease uterine कॉन्ट्रैक्शन. सो मैग्नीशियम सल्फेट आप प्री टर्म लेबर में भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. अगर प्री टर्म लेबर है प्लस उसको हाइपरटेंशन भी है और सीजर्स भी हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट इज़ द बेस्ट ड्रग टू गिव. सो फोर्थ इंडिकेशन क्या है मैग्नीशियम सल्फेट देने की? दैट इज व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द डिलीवरी एट 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. एट दैट टाइम यू कैन गिव व्हाट? मैग्नीशियम सल्फेट. सो व्हेन you are expecting delivery at 32 weeks, so you can give what? MgSO4. Okay. ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ना, दिस मैग्नीशियम सल्फेट ये क्या है? दिस इज अ न्यूरोप्रोटेक्टिव drug in fetus. This is what? Neuroprotective drug. This to neuroprotection in fetus. ठीक है. न्यूरोप्रोटेक्शन करता है. कैसे करेगा न्यूरोप्रोटेक्शन? फर्स्ट इट स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. पहला क्या करेगा? ये स्टेबलाइज करेगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल को. सेकेंड व्हाट इट विल डू? इट विल डिक्रीज द सेरेब्रल एडीमा.
Third, this will decrease the oxidative injury. And fourth ये क्या करेगा? This will also do cerebral vasodilation. So in this way, MgSO4 act as a neuroprotective drug in fetus. कैसे? It stabilize the membrane potential. Second, ये क्या करेगा? Cerebral vasodilation कराएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कराएगा या ऑक्सीडेटिव इंजरी के चांसेस को कम कराएगा एंड सेरिब्रल एडिमा को कम करेगा. ठीक है. नाउ इफ दे आस्क यू व्हाट इज द साइट ऑफ MgSO4 एक्शन, ये बेसिकली एक्ट कहाँ पे करेगा? सो मेनली ये जो NMDA रिसेप्टर्स होते हैं, NMDA रिसेप्टर्स ऑन ब्रेन, उस पे एक्ट करेगा. सो बेसिकली इट एक्ट्स ऑन NMDA receptors in brain. ठीक है. NMDA रिसेप्टर पे ये एक्ट करेगा. Got it? Now मैग्नीशियम जो सल्फेट है ना, बेसिकली दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. ये क्या है? एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जो हम फीमेल को दे रहे हैं. ठीक है. गॉट इट? नाउ आपने सारे ड्रग दे दिए, एंटी हाइपरटेंसिव भी दे दिया, MgSO4 भी दे दिया. तो बेसिकली हमने ये सब क्यों किया? टू अचीव द टारगेट बीपी. अब टारगेट बीपी क्या है? टारगेट बीपी कितना होना चाहिए? अगर हम सिस्टोलिक की बात करें तो सिस्टोलिक के केस में अगर द BP is between 120 to 130 mmHg, so that is our target BP. और if we talk about the diastole, तो उसमें BP कितना होना चाहिए? तो जो हमारा टारगेट BP है that is 80 to 90 mmHg. ठीक है. Got it? Now let's discuss about the treatment. Repeat. Now let's discuss about the termination of pregnancy. Termination of pregnancy. So termination हम कब करेंगे? अगर पेशेंट को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है या प्री इक्लेम्सिया है विदाउट सीवियर फीचर्स, एंड ये सारी चीज़ें मीन्स आपके पेशेंट वेल कंट्रोल्डली मैनेज है, तो यू कैन गो फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट 37 वीक्स. सो जस्ट राइट, फर्स्ट आप कब करोगे? व्हेन पेशेंट इज विद gestational hypertension with pre-eclampsia and जो भी symptoms है that and without severe features. Okay, patient is well controlled. So what you can do? You can go for termination of pregnancy at what week? At 37 weeks. Okay. Now second scenario, अगर इसको pre-eclampsia है, फीमेल में pre-eclampsia is there with severe features. And we have discussed severe features मतलब जिसमें end organ damage और proteinuria है. ठीक है. और इवन विद दिस सीवियर फीचर्स बेशक उसका बीपी वेल कंट्रोल्ड भी है, तो आपने टर्मिनेशन कब करनी है? एट 34 वीक्स. इवन इफ बीपी इज वेल कंट्रोल्ड, तो यू हैव टू डू
termination of pregnancy at 34 weeks of pregnancy. Okay. The third scenario regarding termination of pregnancy is if the female is suffering from HELLP syndrome. अगर उसको HELLP syndrome है तो आपने क्या करना है, कब करनी termination of pregnancy? At 34 weeks. So you will do this at 34 weeks. Now, irrespective of what is the gestational age, आप कब करोगे termination of pregnancy? So termination of pregnancy irrespective of gestational age. तो फर्स्ट सिनेरियो, जब आप बिना सोचे समझे कि इसकी जेस्टेशनल एज क्या है आप उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दोगे, दैट इज इम्पेंडिंग इक्लैम्सिया. इन केस ऑफ इम्पेंडिंग इक्लैम्सिया you can do this. Second, if there is eclampsia, then you can do. Third, if fetal distress भी है और abruption भी है, ठीक है. Abruption generally this is the most common cause of preeclampsia, ठीक है. So just write it here. This is the most common cause of preeclampsia with severe features. Okay. तो इस केस में चाहे फीटल डिस्ट्रेस हो, एब्रप्शन प्रेजेंट हो, तो आपने बिना सोचे समझे सिजेरियन कर देना है, ठीक है. After that, the next indication for termination of pregnancy without irrespective of gestational age is what? Uncontrolled BP, uncontrolled blood pressure. After that, the next is acute kidney injury. Next is what? Acute kidney injury. एक्यूट किडनी इंजरी आप कैसे डायग्नोज करोगे? बाय सीइंग द क्रिएटिनिन लेवल्स, और आपको यहाँ पे हाई क्रिएटिनिन लेवल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है. आफ्टर दिस द नेक्स्ट condition where you can do termination of pregnancy without gestational age is pulmonary edema. And after that, the last one is coagulopathy. So basically, अगर इम्पेंडिंग इक्लैम्सिया है, फीटल डिस्ट्रेस या एब्रप्शन है, या अनकंट्रोल्ड बीपी है, या एक्यूट किडनी इंजरी है, कोएगुलोपैथी है या पल्मोनरी एडिमा है, इसमें आपने क्या करना है, टर्मिनेशन फटाफट से कर देनी है, ठीक है, चाहे इसकी जेस्टेशनल एज कोई भी हो. गॉट इट? नाउ इन दीज कंडीशन डोंट गिव स्टेरॉइड्स. ओके, there is no need to give steroids here. Don't give steroids, ठीक है. इवन आप स्टेरॉइड्स दे भी दोगे ना तो इसकी कंडीशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, गॉट इट?